Coming back to the word, कितने लोग कुछ सीख रहे हैं आज? मैं चाहता हूं केवल आप एक वचन लेके न जाओ यहां से. I want you to not only take a word विश्वास का आत्मा लेके जाओ. but take the spirit of faith. विश्वास का आत्मा एक चीज करेगा. The spirit of faith will आपको do ये one thing. बेचारेपन के रास्ते में जाने नहीं देगा. वो खड़ा हो जाएगा. तू यहाँ नहीं जा. तेरी एंट्री बंद है इस जगह. Take you out from the path of pity. He'll say you're not allowed to enter here. बोले थोड़ा सा अंदर जाने दो. मुझे थोड़ा सा तरस चाहिए. A little sympathy. तुझे कोई तरस नहीं मिली है. No, you will not get any sympathy. एक विश्वास का योद्धा है. You are a अपनी champion. तलवार उठा, अपना मुंह खोल और विश्वास की घोषणा करना You शुरू are a कर. warrior of faith. Open your mouth, take up your sword, and start to make declarations. Amen. बोलो I will never desire pity anymore. बोलो मैं तरस की चाहत नहीं रखूंगा फिर कभी. Amen. मैं ये घोषणा करता हूं परमेश्वर आपको उस जगह में रखेगा जहां कोई भी आपके ऊपर दया नहीं दिखा पाएगा. I pray that God will place you in a position where nobody will ever be able to have pity on you. You will not be pitiable, you will be enviable. आप दयनीय नहीं, आप जलन के योग्य ठहरेंगे. Amen. Hallelujah. आप जानते हैं एक डेफिनेशन ब्लेस्ड की है, to be envied. The definition of blessed is to ईर्ष्याजनक होना या जलन के योग्य होना. एक परमेश्वर के दास रेनार्ड बॉन्की अब वो प्रभु के पास चले गए. Man of God Reinhard Bonnke is going to be with the Lord. उनके लिए आप एक जानना चाहते हो, अगर आप जानना चाहते हो अगर प्रभु का कोई सच्चा दास कौन है तो देख लो जिसके बारे में सबसे ज्यादा बुराई होती है वही उसका सबसे सच्चा दास. If you want to find out who is a true man of God, then the people that are criticized the most are those true men of God. Amen. So रेनार्ड बॉन्की जो उनके लिए लोग बहुत बुरा बोलते थे. People used to say many evil things about तो him. कोई उनके पास आया, उनको बोला कि आप क्यों नहीं वो आंसर देते अपने क्रिटिक्स को. Someone came to him and said, "Why don't you give an answer to your critics? आपके बारे में इतना कुछ बोलते हैं. They say so many things about you. आपका क्या आंसर है अपने क्रिटिक्स के? What is your answer to your critics?" उन्होंने कहा मेरा अगला क्रूसेड मेरा आंसर है. He said, "My next crusade is my answer. मेरी अगली मीटिंग जो परमेश्वर मेरे जीवन, my success is my answer." मेरी सफलता मेरा उत्तर है. Okay. So एक चीज जो मैं चाहता हूँ आप आज समझे, ये विश्वास केनेथ हेगिन प्रभु के एक महान दास जो प्रभु के पास चले गए, वो 40 साल तक विश्वास सिखाते रहे. कितने साल तक? 40 साल. Kenneth Hagin, a great man of God, kept on teaching faith for 40 years. और तब कलीसिया को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा. And then the church began to understand a little bit. Brother Ugo कहाँ है? Are you here? Brother Ugo? Yes, yes. Ugo, yeah, can you say? शैतान ने उनको मेंटली बांधा हुआ था. उन्होंने एक शिक्षा को 211 बार एक शिक्षा को सुना और कंप्लीटली फ्री हो गए. The devil had bound him in his mind. He heard one teaching 211 times and he's completely free. Amen. Now what? Now God has made him an example. अब परमेश्वर ने उनको एक उदाहरण बनाया. परमेश्वर आपको उदाहरण बनाने जा रहा है God विश्वास. is going to make you an example of faith. मैंने कहा परमेश्वर आपको उदाहरण बनाने जा रहा है I said God is going विश्वास to का. make you an जब example लोग of आपको faith. देखेंगे कहेंगे मैं आपकी तरह विश्वास चाहता हूँ. When people will see you, they will say, "I want faith मैं like आपकी you. तरह छुटकारा चाहता हूँ. I want deliverance like you." Amen. You can be seated. आप बैठ सकते हैं. Just 3 more hours. बस 3 घंटे और. I don't have any dollars to give you, but I'll give you much more precious than that. Okay, so let's see this passage. Matthew 15, Mati 15, Matthew 15, we'll read from 21 to 28. Amen? Hallelujah. Okay. Then Jesus went out from there and departed to the region of Tyre and Sidon. And behold, a woman of Canaan came from that region and cried out to him, saying, "Have mercy on me, O Lord, son of David. My daughter is severely demon-possessed." यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया. उस प्रदेश में एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी कि हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है. English Bible says her daughter was severely demon-possessed. अंग्रेजी बाइबल में लिखा है कि बहुत भीषण रूप से वो दुष्ट आत्मा की ग्रसित थी, सताई थी. और वो यीशु मसीह के पास आती है. And she comes to Jesus.
But he answered her not a word. लेकिन उसने उसको कोई उत्तर नहीं दिया. What do you do when you feel like there is no answer coming? आप क्या करते हैं जब आपको लगता है कि कोई उत्तर नहीं मिल रहा है मुझे? You have believed God. आपने प्रभु पे विश्वास किया है. You did everything that you knew to do. आपने सब कुछ कर लिया जो आपको पता था. But there is no answer. पर कोई उत्तर नहीं मिला. It feels like God is silent. ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर चुप है. What do you do? क्या करेंगे? वो समय है जब बहुत सारे लोग बहुत जल्दी they give up on God and start to complain and grumble and murmur. That is the time जब लोग हार मान जाते हैं, परमेश्वर पे छोड़ देते हैं और शिकायतें लाने लगते हैं. He answered her not a word. उसने उसको कोई उत्तर नहीं दिया. And his disciples came and urged him saying, send her away for she cries out after us. तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की कि इसको विदा करो क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है. Can you imagine? Now I want you to pay close attention मैं चाहता हूँ ध्यान दें of what is happening. जो हो रहा है यहाँ पे. Because कई लोग यीशु मसीह को एक जादूगर के एक अलादीन के जीनी की तरह सोचते हैं. Because many people think that he's a magician or like a genie of Aladdin. कई लोग प्रार्थना को ऐसे होते हैं, हम तो गए वहां पे, हमने तो बोला, हमारे साथ तो हुआ नहीं. परमेश्वर एक अलादीन का चिराग जीनी नहीं है. They pray like that. They say, oh, we went there but nothing happened. God is not a genie. कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? वो विश ग्रांट नहीं कर रहा. He's कि not तीन granting a विश wish. हैं, बोल बेटा क्या चाहिए. He's not granting a एक wish. सिद्धांत है, आपको सीखना है. There are principles you can learn. So इमेजिन करिए यीशु मसीह के पास एक औरत आके, सोचिए कि वो गिड़गिड़ा रही है, उसे चिल्ला रही है. So a woman comes to Jesus and is bitterly asking him, He's not answering. shouting, and he's not answering. वो चुप चुप है. है. Isn't that insulting? क्या ये बेइज्जतीजनक नहीं है? फिर वो गई डिसाइपल्स के पास. Then she went to the disciples. चेलों के पास जाके बोल रही है, She goes to the वहां disciples गिड़गिड़ा रही है. and she's फिर begging चेले them. आके यीशु मसीह को बोल रहे हैं, Now the disciples इसको come to भेज him. दे. Please send her away. इसको भेज दे, Please send क्योंकि her हमें away. परेशान कर रही है. She's bothering us. What do you do in such situation? क्या करेंगे आप ऐसी परिस्थिति में? When the answer that you expected to come didn't come the way you expected it to come. जब जैसा आप चाहते थे वैसा उत्तर नहीं मिला, जिस तरह से चाहते थे उस तरह से नहीं मिला. But he answered, and वो चेलों को बोल रहा है, he answered and said, I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel. उसने उत्तर दिया कि इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया. Now imagine करिए, ध्यान से देखिए. कल्पना करें. अब यीशु मसीह उसको आंसर नहीं कर रहे, Now Jesus is not answering her. चेलों को बोल रहे हैं, He's talking to the disciples. मैं इज़राइल के गोत्र को छोड़ो और किसी के पास नहीं भेजा गया. I have not been sent to anyone other than the people of Israel. Now imagine if we were instead of that woman. अगर हम उस औरत की जगह होते, ठीक है मैं जा रही हूँ, I said, fine, I'm going away. क्या मिला मुझे यहाँ आके? What did I get coming here? ये तो पार्शल है, Oh, तो केवल यहूदियों के लिए करता है. he only does for Jews. I love her response. I mean like man, I say मैं ये प्रार्थना करता हूँ प्रभु हमारा हृदय भी इस औरत की तरह. उसके जवाब से मुझे बड़ा प्यार है. मैं कहता हूँ Lord, let our hearts be like this woman. जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला कि मैं इज़राइल की भेड़ों को छोड़ कहीं और नहीं भेजेगा, you know उसके बाद उसने क्या किया? When Jesus said, I am only sent to the lost sheep of Israel, you know what she said? She came and worshipped him. उसने आकर उसकी आराधना की. She came and worshipped him. उसने आकर उसकी आराधना की. Faith is unoffendable. विश्वास नाराजगी से आजाद है. विश्वास परमेश्वर के ऊपर नाराज नहीं होता. Faith does not get offended with God. Are you guys with me? She is now worshiping Jesus. वो यीशु की आराधना कर रही है. The same Jesus who has ignored her. वही यीशु जिसने उसको नजरअंदाज किया. She's worshiping him. उसकी आराधना कर रही है. You know why? पता है क्यों? I told you faith is persistent. मैंने आपको बताया था